Hare Krishna. So the 65th verse, yeah. So yesterday and today, 64th and 65th, these two talk about the leeway, as we were discussing yesterday also, the leeway that Krishna offers. Even though Vishayan Indriya Charan, although the senses are completely engrossed in sense objects, give up attachment or aversion to it. Do it as a duty. That's it. Without any expectation of result. So, when one does it like this, then what happens? Prasadam adhigachyati. When a person gets mercy, prasad, हिंदी में किसी ने बहुत सुंदर रूप से कहा, प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद. So prasadam adhigachyati. One actually becomes happy, one gets grace, one gets mercy. What happens when one gets mercy of Krishna? Krishna says, prasade sarva dukkhanam हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. Krishna says, for one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. When one gets mercy of the Lord, Krishna is also seeing the struggle of living entity. इतना जो अब तक भगवान बोले, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, नो माइंड, नो सेंसेस, कंट्रोल, वो भी जानते हैं ये बोलना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है. लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, अपना जीवन उनको समर्पित करने के लिए ये करते हैं, he becomes very happy. Prasade, and when he becomes happy, that is called prasad. Sarva dukkhanam hani. Why are we getting dukkha in this material world? We are getting dukkha because of adhi atma, adhi bhuta and adhi daiva. Three kinds of kleshas. Adhi atma. Adhi atma means because of my own body and mind. सर दुखता है, पैर दुखते हैं, पचन ठीक नहीं है, दांत गिर रहा है, यस, आंखें ठीक से नहीं देख पा रही, कान सुनने में नहीं आ रहा है, स्किन डिजीज है, बॉडी. माइंड प्रॉब्लम, देयर इज लस्ट, देयर इज ग्रीड, देयर इज एंगर, देयर इज एनवी, ये सब अंदर से व्यक्ति को खाते हैं. सो दिस इज अधि आत्मिक क्लेश. देन देयर इज सेकंड अधि भौतिक क्लेश. मिजरीज बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज. अरे मेरा पति, मेरी पत्नी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे हैं, मेरा बॉस मुझसे झगड़ा कर रहा है, मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरा कहा नहीं मानते, कुछ नहीं तो एक मच्छर रात करके रात में चुभा करके जाता है और मेरी नींद खराब कर देता है. somehow because of some other living entity I am troubled. And the third is adhi bhautik klesh. Kleshas or miseries which are not in my control. बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत ज्यादा बारिश के कारण हर जगह पे पानी पानी होना, बारिश न होने के कारण सूखा पड़ जाना. यस, सो ये सारी चीजें जो हैं ये ना आपके कंट्रोल में, ना मेरे कंट्रोल में, किसी के नहीं है. दैव अधिदैव. So because of these a person is always disturbed, or a person is always tensed. So Krishna says that when one gets my mercy, then hani sarva dukkhanam hani. Even though it might be happening in his life, but he is not troubled by it. Upajayate. That is how a consciousness develops. Prasanna chetaso hi ashu. He becomes happy in his consciousness. Yes. Ashu, very fast. बहुत ही जल्दी जब भगवान प्रसन्न होंगे ना, बहुत जल्दी चीजें हिलेंगी. ये आपने देखा होगा. यस, हम उसे भाग्य कहते हैं. एक साधारण व्यक्ति उसे भाग्य कहता है. अरे बरसों से अटका हुआ एक प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व हो गया, या एक कोई तो गड़बड़ चीज थी वो ठीक हो गई, या पति पत्नी के बीच में काफी समय थे स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स थे, अभी ठीक हो गए,
बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था 10वीं तक, 11th से अच्छा पढ़ाई कर रहा है। सो समहाउ थिंग्स चेंज। यस, नॉर्मल आदमी वो उसे भाग्य कहता है, लेकिन भगवान का एक भक्त जानता है कि वो भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। सो प्रसन्न चेतसो ही आशु, कृष्णा सेज वेरी आशु, वेरी क्विकली एंड्योर योर कंट्रोल। अपने मन और इंद्रियों को थोड़े समय तक कंट्रोल करो हे बालक। प्रसन्न चेतसो ही आशु, बहुत जल्दी वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। डोंट वरी, स्ट्राइव योर बेस्ट। At one point of time you will think like, oh, I just want to give it up. Don't give up, stay. Ashu, prasanna chetaso hi ashu. Then buddhi paryavatashthate. Buddhi, the intelligence, will be sthita at a much higher level. One will be able to analytically see things. So we see regulative principles of freedom are like a runway. एयरपोर्ट पे रनवे होता है। अब नाउ फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल इज थ्रू एयर, लेकिन ये प्लेन हवा में उड़ता कैसे है? हवा में उड़ने के लिए उसे 4 किलोमीटर का रनवे चाहिए। वो 4 किलोमीटर के रनवे पे भागेगा, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आएगा, तब वो ऊपर उड़ेगा। तब तक वो ऊपर नहीं उड़ सकता। इफ अ प्लेन स्टार्ट्स थिंकिंग, क्या यार ये छोटी से छोटी मोपेड से लेके ट्रेलर तक का बड़ा बड़ा बसेस भी आराम से घूमते हैं रास्ते पे, और मैं सिर्फ एरोड्रम पे ही, मेरे लिए सिर्फ रनवे, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लाइफ में फ्रीडम ही नहीं है, केवल रनवे से आकाश, आकाश से रनवे, ऐसे चलता है क्या? लेकिन अगर उस प्लेन को सही सलामत रहना है, उसे वो रेगुलेटिव फ्रीडम एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर वो रास्ते पे नीचे उतरेगा, वो नष्ट हो जाएगा। वो पानी में नीचे उतरेगा, वो नष्ट हो जाएगा। अगर उसे सही सलामत रहना है और सबसे अच्छा इफेक्टिवली काम करना है, द प्लेन हैज टू रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ ओनली टू द रनवे। सो द रनवे ओपन्स अप अ फ्री एयर फॉर द प्लेन। आशु 4 किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्टेड उड़ो, उसके बाद में स्वच्छंद आकाश में घूमो। उतरते समय 4 किलोमीटर रिस्ट्रिक्टेड रनवे पे उतरो, सेफ लैंडिंग करो। उसी प्रकार से ओ विषयान इंद्रियश्चरन् राग द्वेष विमुक्तैस्तु। So although a devotee engages himself in control, it is that control only which will help the devotee to transcend. And how? Ashu, Krishna says, don't lose hope, my child. Ashu, very quickly it will happen. Endure for some time. थोड़े समय तक घिसाई करो। Thank you very much. Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna